नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। 7, सेक्शन 9, सेक्शन 3, सेक्शन 269 जो है इसको डील कर रहा है प्रमोशन को लेकर। और प्रमोशन ऑफ द कंपनी मीन्स इट इज अ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज which is necessary for the purpose of registration of the company. Promotion of the company जो है it's a first important preliminary stage which is necessary steps should be taken for the registration of company. And promotion आप ये भी कह सकते हो कि it's organizing or planning the finance or organizing the funds, property, manager ability into the business. और what's the purpose of the making profit and मतलब एक कंपनी को रजिस्टर करने से पहले या एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले जो भी प्रीमियरी स्टेज है या जो भी नेसेसरी स्टेप है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, फंड्स इकट्ठे करना, कौन सा बिजनेस आप करेंगे, ठीक है, किस तरीके, कौन सी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी होगी और क्या उसका आगे स्कोप होगा उस बिजनेस, the persons who are behind this particular task, who undertake this task for the purpose task of promotion, जो लोग इसके पीछे behind हैं, they are the called as promoters. ये जो है उनको हम promoters कहते हैं, and the promoters are defined under section 2 of clause 69 of the Companies Act. Please see the section 2 clause 69. 69 को देखो please, if your bare act is with you. अगर आप इसको देखते हो तो promoter means a person means यहाँ पर person word use किया है, and the person can be an individual person or the association also. A person means a person, it's either individual or an association also who has been named as in the prospectus or is identified by the company in the natural return referred to in section 92. यानी वो persons या associations जो prospectus में जिनका नाम जो है mention किया गया है, and those who have control over the affairs of the company, वो लोग जो companies के affairs को जो है control कर रहे हैं directly or indirectly, whether it is a shareholder, directors or otherwise, or those who are giving the advice, direction or instructions to the board of directors of the company, जो board of directors को advice दे रहे हैं, direction दे रहे हैं, companies के affairs को control कर रहे हैं, वो लोग जिनका नाम, चाहे वो लोग हैं चाहे वो एसोसिएशन है, जिनका नाम एक प्रोस्पेक्टस पे मेंशन किया गया है, दे आर कंसीडर्ड टू बी अ प्रमोटर्स. ठीक है, जो दे आर कंसीडर्ड टू बी अ प्रमोटर. फिर उसके बाद एक प्रमोटर जो है वो आपका यहाँ पर वर्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वर्ड है यहाँ पर यूज किया गया पर्सन, तो मीन्स इट कैन बी अ इंडिविजुअल, इट कैन बी अ फर्म और इट कैन बी अ बॉडी कॉर्पोरेट. प्रमोटर्स सिंपली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो प्रमोटर्स वो हैं जो हु ब्रिंग अ कंपनी इनटू द एग्जिस्टेंस. प्रमोटर्स आर दोज हु ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस हुज नेम्स आर मेंशन्ड ओवर द prospectus पे जिनका नाम मेंशन है, those who are control over the affairs of the company, those who advising, those who are giving the direction to the company, or those who are giving instruction to the board of directors, they are the promoters. Now the second one is what are the function of them, इनका function क्या है, functions क्या है promoter का, and the first function is they are the creator, they are the person who mold the company. The person जो एक कंपनी को क्रिएट करने के पीछे जो पर्सन्स होते हैं, दे आर द प्रमोटर. और फर्स्ट जो इनका जो फंक्शन है, दैट इज टू डिस्कवर एन आइडिया.
Discover an idea means to discover an idea to set up a business, to set up a company, and to set up or to create an idea, set up a new business, expand a business, existing business, analyzing the amount of capital required for the purpose of promotion of the business, or to measure the degree of risk involved in that existence. यानी कि जो कंपनी को बनाते हैं, कंपनी के जो बिजनेस है उसको रन करने के लिए जो फंड्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, या वो सेटअप करते हैं, या जो न्यू बिजनेस, जो एक कंपनी का जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए जो कितनी कैपिटल लगेगी उसको एनालाइज करना, उसके पीछे कितना रिस्क फैक्टर हो सकता है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा, इन सब को एनालाइज करना. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रमोटर्स. सेकेंड वन इज टू डिटेल इन्वेस्टिगेशन. Detail investigation means they have to investigate regarding the cost, profit, production, demand of the product, etc. यानी वो लोग जो बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना कॉस्ट आएगा, इनका मेन काम है. कितना प्रॉफिट आएगा, कितना प्रोडक्शन, कितना माल को प्रोड्यूस किया जाए, कितना डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इस सब को लुक आउट करना जो है ये भी एक प्रमोटर की जिम्मेवारी है. एंड और कंपनी का जो साइज है, मतलब द थिंग इज द कंपनी का जो एक्सपैंड कितना कंपनी को करना है, कितना कब कंपनी को एक्सपैंड करना है, कब किस कंपनी को किसके साथ अमेलगमेट करना है, कब कंपनी जो है अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे परचेज करेगी, या कब जो प्रॉपर्टी कंपनी की जो प्रॉपर्टी है कब सेल आउट करनी है, किस तरीके से सेल आउट करनी है. तो ये सारे जो डिसीजंस हैं दैट शुड बी टेकन बाय द प्रमोटर. दिस इज द मेन function of the promoter. Third one is to collecting the resources which is a necessary resources for the formation of the company. Third important जो इसका function है, ये collect करता है resources. It collects the resources या necessary resources for the formation of company. Example के लिए material, land, machinery, requirement of staff, etc. जो भी requirement एक कंपनी को बनाने के लिए चाहिए, जो necessary requirement है, वो भी जो है इट्स अ वर्क ऑफ द प्रमोटर. एंड द फोर्थ वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन इज प्रिपेयरिंग अ प्रिमिनरी डॉक्यूमेंट्स विच इज द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. अगर एक कंपनी को आपने इनकॉर्पोरेट कराना है कंपनीज एक्ट में, तो उसके लिए कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है. और वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट में से फर्स्ट नेसेसरी डॉक्यूमेंट क्या है? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. एमओए क्या होता है? पहले हमने बहुत इलैबोरेटली इसको डिस्कस किया हुआ है. एमओए विच इज गिव यू द ऑब्जेक्ट, विच इज गिव यू द पर्पस बिहाइंड विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश. आपको कंपनी का पर्पस बताता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट बताता है कि क्यों कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश की गई है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है दिस इज रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंटर मैनेजमेंट, जो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा, कैसे काम होगा, वो उसके बारे में बताता है. Then the third one is the prospectus. Prospectus जो है आपको उसके members के डिटेल बताता है कि who will be the member, who is a recent member, how much the property they have, how much the property of the company have. So ये जो तीन है, memorandum of association, article of association and prospectus, ये तीनों 3 ऐसे preliminary document है which is necessary at the time of the registration of the company. कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट देना बहुत जरूरी है. और ये भी काम कौन करता है? प्रमोटर्स करते हैं. जो नेक्स्ट वन है दैट इज द सेलेक्ट द नेम ऑफ द कंपनी. नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या होगा, दैट इज टू बी सिलेक्टेड बाय द प्रमोटर्स. लेकिन उसके साथ साथ दे हैव टू बी फॉलो सम limitation, they have to follow some precautions also, that the name of the company should not be identical with the name of another company. ना identical name नहीं होना चाहिए. और अगर if central government had put some restriction on particular name, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नाम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लिख कर रखा है, या उनको ये बोल रखा है कि विद इन 90 days में you have to change this name, they have to be do it.
उनको ये काम करना पड़ेगा अगर उनको किसी तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है. देन अगेन their important function is that is they have to be appointed bankers, brokers, solicitors, underwriters. कौन उनके एडवोकेट होंगे, कौन उनके चार्टर अकाउंटेंट होंगे, कौन बैंकर किस बैंक से वो लोन लेंगे, कौन उनके मीडिएटर होंगे जो उनके बिजनेस को प्रमोट करेंगे. तो ये सारा जो काम है दैट इज लुक आफ्टर बाय द प्रमोटर्स. सो सिंपल जो ये चीज है कि प्रमोशन मीन्स क्या है. प्रमोशन मीन्स दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. और एक कंपनी के फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? प्रमोटर्स का होता है. प्रमोटर्स आपके जिसको हम डायरेक्टर्स भी बोल देते हैं, जिनको हम जो है आपकी प्रमोटर्स जो है आपका एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक फर्म भी हो सकती है और एक एसोसिएशन भी हो सकता है. सो दिस इज द बेसिक जो है इनके फंक्शन है. जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर. प्रमोटर का एक लीगल क्या है, एक लीगल पोजीशन क्या है उसका कंपनी में. ही इज अ एजेंट. क्या वो एजेंट है कंपनी का? क्या वो ट्रस्टी है कंपनी का? आंसर इज नो. ही इज नॉट अ एजेंट और ही इज नॉट अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी. इवन दो ही हैज क्रिएटेड द कंपनी. जैसे सालमन एंड सालमन के केस में हमने देखा कि even though he has created the company, but once a company is incorporated, the company is different from its directors, different from its promoters. ना ही वो एजेंट है. जैसे कि आपके पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में एक दूसरे के साथ एजेंट होते हैं, दे आर एजेंट होते हैं वो एक दूसरे के लिए. लेकिन कंपनी में नहीं है ऐसा. कंपनी में डायरेक्टर्स आर नॉट द एजेंट, दे आर नॉट द ट्रस्टी. दे the company and the promoters are in fiduciary relationship. एक fiduciary relationship है उनके बीच में. and और सबसे important क्या है कि the thing is that कि कोई किसी भी तरीके का जो भी directly या indirectly कोई भी expenses जो एक registration कराने के दौरान कंपनी को कराने के दौरान जो भी एक्सपेंसेस जो प्रमोटर्स के द्वारा एक्सपेंड किए जाते हैं, खर्च किए जाते हैं, वो उसके पास अथॉरिटी है कि वो कंपनी से ले सकता है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी तरीके का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है या अनहिडन जो है कोई किसी भी तरीके का बेनिफिट जो है प्रमोटर्स जो है कंपनी के नाम पे नहीं ले सकते. और दे हैव टू डिस्क्लोज प्रमोटर्स जो है, और ये उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है प्रमोटर के ऊपर से कि दे हैव टू डिस्क्लोज ऑल द बेनिफिट्स. जितने भी प्रॉफिट कंपनी को हो रहे हैं या लॉसेस कंपनी को हो रहे हैं, या अगर वो अपनी प्रॉपर्टी जो है कंपनी को बेच रहे हैं या कंपनी की प्रॉपर्टी खुद खरीद रहे हैं, then it's a puts an obligation on them that they have to disclose all the facts. कुछ भी कोई भी काम वो हिडन नहीं कर सकते. ये कहना कि ये कंपनी मैंने क्रिएट करी है तो इसका जो बेनिफिट है वो मैं ले सकता हूँ, या मैंने ये जो कंपनी मैंने क्रिएट की है तो इसका जो प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टी मैं बेचूं या खरीदूं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता. नहीं, यू कैन नॉट. क्योंकि जब वंस दो यू हैव क्रिएटेड द कंपनी बट स्टिल अंडर अ लॉ the company is a legal identity. Company is a separate from its director. Company जो है अपने डायरेक्टर से अलग है. आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते. कंपनी के जो प्रॉफिट है आप उसको अपने प्रॉफिट नहीं दिखा सकते. कंपनी के जो लॉसेस हैं उसको आप अपने लॉसेस नहीं दिखा सकते. कंपनी की जो प्रॉपर्टी है आप उसको अपनी प्रॉपर्टी कह के नहीं बेच सकते हैं, या अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी की टैक्सेशन पर्पस को लेकर जो है अपनी प्रॉपर्टी को कंपनी की प्रॉपर्टी टैक्स इवेजन के लिए बचाने के लिए आप वो नहीं कर सकते हैं. सो व्हाटएवर यू आर डूइंग, इवन दो इट्स अलाउ यू टू दैट यू कैन परचेज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. आप परचेज कर सकते हो प्रॉपर्टी एंड यू कैन सेल आउट योर ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी ऑल्सो. आप कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट भी कर सकते हो. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि दैट यू हैव टू बी डिस्क्लोज. आपको जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा. और अगर आप डिसऑनेस्ट, इफ यू आर अ डिसऑनेस्ट पर्सन, इफ यू आर नॉट डिस्क्लोज द थिंग्स, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं
तो उस सिचुएशन में द एडवांटेजेस विच आर गिवन टू यू बाय द कंपनी यू विल बी डिप्राइव ऑफ इट। आपको वो जो भी अगर आप एक डिसऑनेस्ट प्रमोटर है, देन जो है जो भी एडवांटेजेस आपको कंपनी के कारण आपको मिल रहे हैं वो जो है आपसे ले लिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है दैट इज द राइट ऑफ द प्रमोटर। प्रमोटर का राइट क्या है? प्रमोटर का फर्स्ट राइट है दैट ही हैज टू incur all the expenses which he had occurred or he had got at the time of setup of registration of the company from the board of directors। यानी प्रमोटर के जितने भी he is entitled to receive all the expenses which he incurred in the setup and the registration of the company from the board of directors। और जो भी उसने खर्चा किया चाहे कंपनी को सेटअप करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो है एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है। दूसरा, इवन कि अगर को प्रमोटर्स जो हैं, इवन कि ही कैन रिकवर अगर किसी को प्रमोटर को ज्यादा पैसे दे दिए जाते हैं या जो को प्रमोटर्स हैं उनको जो है ज्यादा जो है सीक्रेट प्रॉफिट जो दिए जाते हैं, तो उसके पास ये राइट है कि वो उनसे जो सीक्रेट प्रॉफिट एक को प्रमोटर को दिए जाते हैं वो उनसे वो रिकवर कर सकता है। इवन ही हैज द राइट टू रिम्यूनरेशन, मींस कि अगर वो किसी तरीके की सर्विसेज, बीइंग अ प्रमोटर उसके अलावा अगर वो किसी तरीके की सर्विसेज अगर कंपनी को वो प्रोवाइड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसको जो उसकी पे बनती है, वो पे भी ही कैन क्लेम फ्रॉम अ कंपनी। वो कंपनी से वो पे भी वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। उसके साथ ये देन इसके साथ ये दैट्स द लायबिलिटी ऑफ द प्रमोटर। प्रमोटर की लायबिलिटी क्या है? अब प्रमोटर की लायबिलिटी क्या है? दैट इफ ही गिव्स एनी फर्निश एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, अगर वो कोई किसी भी तरीके की फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है या किसी भी मटेरियल फैक्ट्स को सप्रेस करता है या किसी भी तरीके की गलत रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड एक्शन करता है, देन द प्रमोटर इज लायबल फॉर एन एक्शन। Promoter shall be each be liable for action under section 447 then be liable under section 447। तो वो जो कि आज के प्रेजेंट सेक्शन में दैट इज सेक्शन 7 के अंडर जो है वो लायबल होगा। दूसरा जो बोध कर रहा है कि अगर किसी भी तरीके की प्रोविजन विच इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर प्रमोटर जो है अगर नॉन कंप्लाइज करता है किसी भी तरीके की प्रोविजंस को विच इज मेंशन्ड अंडर 26, ही इज liable according to section 26 or according to section 35 subsection 1, according to section 35 subsection 1 is agar some damages, some loss or some losses has been caused or some damage has been caused to the or misleading statement or some kind of act which is done by the promoter and it caused loss or damage to the company business, then in that situation he has to pay a compensation to every person who has sustained such losses or damage। उसको जो है हर बंदे को जो है जिसने भी डैमेज या लॉसेस सफर किया बिकॉज ऑफ हिम, ही हैज टू गिव अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में उसको देना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ जो है दिस इज कि यहाँ पर जो है आपको सिंपल ये बात बोला जा रहा है कि प्रमोटर क्या है, प्रमोशन ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल and they have to do all the functions of the function which is important for the
enhancement of the business, which is important for the we can say for running the business, for the production of the articles, for the distribution of the articles, जो goods है उसको distribution के लिए he have the power to take any kind of decision. He has the duties and liabilities. Liabilities is that he has to disclose everything. He has not to make any false, or he has not to do any act which is affect the business of the company. If company faces any kind of loss or damages because of him, because of the promoter, then he will be liable to pay a compensation as well as the punishment also. The next one is that is the formation of the company, which is given under section 3. Formation of the company means that is the incorporation or registration of the company. The company, when we start the company, word means that the person, the group of person, the company means the group of person, they are come together. They are come together to do some business. When they come together, when the group of person, when they come together for the group of business, they are called the promoters. And when they become an association, it is called a company. Under section 3, if you read section 3, it says ki any 7 or more person, clearly say any 7 or more person, 2 or more in case of private, and 1 person in case of 1 person company, may form an incorporated company for lawful purpose by subscribing their name to the memorandum of association and complying with other requirement in company may be a company limited by share, limited by guarantee and unlimited company. क्या कह रहा है कि आपको अगर इफ यू सेज कि कंपनी एक एस्टैब्लिश करने के लिए आपको ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए, अगर आपको प्राइवेट कंपनी एस्टैब्लिश करनी है या आपको पब्लिक कंपनी एस्टैब्लिश करनी है, या आपको 3 कंपनीज के बारे में, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी, अगर आपको 3 कंपनी एस्टैब्लिश करनी है तो आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सन आपको रिक्वायर्ड होंगे. आप मुझे आंसर दे सकते हो प्राइवेट कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए कितने नंबर पर्सन चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम? मैम प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 चाहिए. और मैक्सिमम? और गवर्नमेंट के लिए 7 चाहिए उसके लिए, पब्लिक कंपनी के लिए. रोशन कुमार झा. प्राइवेट कंपनी के लिए कितने चाहिए मेंबर्स? और मैम प्राइवेट कंपनी मिनिमम 3, मिनिमम 2 एज वेल. बसंत कुमार. बसंत कुमार. मैम फॉर प्राइवेट company it's 2 and for public company it is 7. Maximum for private company is 100 and for public company 200. शुभम. थैंक यू योगेश. शुभम. यस मैम. हाँ जी, कितने चाहिए प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए? मैम प्राइवेट के लिए 2 चाहिए मिनिमम, और पब्लिक के लिए 7 मिनिमम चाहिए, और मैक्सिमम 100. शुभम जायसवाल भाई, शुभम जायसवाल. हाँ ठीक है. शुभम 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 शुभम. यस मैम प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम पब्लिक के लिए मिनिमम 7. ठीक है. तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये की जा रही है कि 1 मिनट. रुंझुन गर्ग. रुंझुन गर्ग. सागर यादव. रुंझुन गर्ग. मैम आई हैव वन क्वेश्चन. सागर. मैम रोशन अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दो. मैं क्लास ओवर होने से पहले इसको ले लूंगी, एंटरटेन कर लूंगी. हाँ लिख दो कोई बात. रुंझुन, आपकी क्लास में ना कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन होते जरूर हैं, पर मुझे ऐसा लगता है या तो वो सो जाते हैं या वो किसी और काम में बिजी होते हैं. सागर यादव भी मुझे कोई कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया.
रुनझुन का भी यही है। सूर्य वर्मा लॉग इन रोज होते हैं। ओके रुनझुन, सूर्य वर्मा लॉग इन रोज होते हैं बट कभी रिप्लाई नहीं देते हैं। सौर्या रोज होती हैं पर लेकिन रिप्लाई कभी नहीं करती हैं। माइक्रोफोन की प्रॉब्लम है, वो चेंज करा रहे हैं, सो अब प्रॉब्लम। ठीक ठीक ठीक। सेंथिल रंजन, सागर यादव, चलो एनीवे ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल बोल रहा है कि अगर आपको वंस यू स्टार्ट अ कंपनी यू हैव टू बी मिनिमम रिक्वायरमेंट, इफ इट्स अ प्राइवेट कंपनी मिनिमम इज 2 एंड फॉर द पब्लिक कंपनी मिनिमम इज 7, ठीक है। एंड अगेन फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वंस यू आर गोइंग फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी और वंस यू आर स्टार्ट अ बिजनेस और when you having some idea for a business which you want to be do in the company, that business should be a some lawful purpose. उसका lawful purpose होना बहुत important है। कोई भी कंपनी जो है, अगर आप जब भी उस किसी कंपनी का MOA लिखते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखते हैं, तो उसमें उस कंपनी का पर्पस लिखते हैं। आप ये लिखते हैं कि ये कंपनी जो है बेसिकली किस पर्पस के लिए एस्टैब्लिश है, कंपनी का बिजनेस क्या है। एंड इफ द कंपनी बिजनेस इज द लॉफुल वन, अगर कंपनी का बिजनेस जो है दैट शुड बी अ लॉफुल, इट मीन इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। लॉफुल का मतलब क्या है, इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इट शुड नॉट बी कंट्री टू द पब्लिक पॉलिसी। ये लॉफुल होना चाहिए, पब्लिक नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और कंट्री टू द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी से नहीं होना चाहिए। इफ इट इज अनलॉफुल or purpose is not lawful, then in that situation the registration certificate will not be given to you. So उस situation में अगर in case अगर आपको सर्टिफिकेट अगर मिल भी जाता है इनकॉर्पोरेशन का, तो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आपको ऑटोमेटिकली जो है कंपनी को एक लॉफुल कंपनी का सिग्नेचर नहीं दे देता। इनकॉर्पोरेशन का अगर सर्टिफिकेट आपको मिल भी जाता है तो कंपनी का जो पर्पस है अगर वो लॉफुल नहीं है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नॉट मेक द कंपनी विच पर्पस इज अनलॉफुल है, तो उसको वो ऑटोमेटिकली लॉफुल का जो है सर्टिफिकेट जो है या सर्टिफिकेट जो। दोस्तों अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।